Universal Adult Franchisee, FRANCHISE, Universal Adult Franchisee. And the last feature is Official Language of India. Has anybody missed out anything? Features of Constitution will be explained by me in detail. Okay? So don't worry if you haven't understood any point. Guys, has anybody missed out anything? Please do let me know. If not, then please say that, can I move ahead? Just say yes or no. Fatafat. Okay. Okay. Now, dual government. So, as I said, national government, state government. इसके लिए हम उसको, it's a feature of the constitution, जो शायद हर देश के constitution में नहीं होगा, but Indian constitution में ये है कि there is a dual government का rule, जहाँ पे national, there is one national government and one state government. दूसरा है distribution of powers, as explained earlier. Distribution of powers, guys. Distribution of powers के लिए मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ organs थे government के. कौन से वो organs है? Please tell me. स्वाति आप बोलोगे? Aditi, Aryan, Soumya, legislative, executive, and judiciary. Yes, Aditi, good. Isha, good. Okay. Okay, so that is how distribution of powers happen: legislative, executive, and judiciary. Okay. Now, दूसरा है supremacy of the constitution, क्योंकि constitution in India is the supreme. उसके ऊपर कुछ नहीं है. Even a president, अगर उसने president क्या, sorry, president, prime minister कोई भी ले लो. मेरा टाइपिंग स्लो है मैम. आर्यन तुम्हारा राइटिंग स्लो है, टाइपिंग स्लो है, सब स्लो है. तो एक काम करो, तुम अनम्यूट हो जाओ, तुम फटाफट मुझे आंसर्स दे दो. ओके, एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक. मैं क्या बात कर रही थी? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्राइम मिनिस्टर ले लो या तुम कोई रास्ते का भिखारी ले लो, ये दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन से देखूं तो both are equal. Everybody is supposed to be treated equal in front of the law. अरे प्राइम मिनिस्टर ने अगर मर्डर किया है तो उसको उतनी ही सजा होगी जितना हमारे लॉ ने डिसाइड किया हुआ. और अगर कोई भिखारी ने भी मर्डर किया है तो उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी. उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा. ये लिखा गया है, लेकिन कितना उसको एग्जीक्यूट करते हैं और नहीं करते हैं ये हम सब जानते हैं. सो लेट्स नॉट गेट डीप इनटू इट. इट्स ओके, ये ऐसे ही चलता है. करप्शन इज देयर, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. सो डोंट थिंक मच. ओके, नाउ the second the third is authority of the courts. Act as a custodian and guardian of the constitution. जैसे एक गार्डियन होता है जो हमें बताता है कि भाई ये करो, वो करो, ये सही है, ये गलत है. तो सेम वे में जो जुडिशरी
होता है, उसका रोल होता है कि वो इंटरप्रेट करता है लॉस को। अब लॉ बना तो दिया है, पर उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है? कि अगर मैंने ये लिख दिया है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया थर्ड जेंडर मैरिजेस का, तो उसमें लिखा गया था दैट अ पर्सन कैन मैरी अनदर पर्सन, अ मैन कैन मैरी अ वुमन। बट ये चीज को इंटरप्रिटेशन ऐसे ही था अभी तक, लेकिन लूप होल निकाल के पीपल स्टार्टेड कमिंग अप एंड सेइंग दैट with respect to the freedom given to us by the constitution, we are free to marry a guy and to marry a girl. That means a girl can marry a girl and a boy can marry a boy. So ये चीज अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स जो है, जो जुडिशरी जो है, उसको हम लोग ने बोला हुआ है कि भाई इट एक्ट्स एज अ कस्टोडियन एंड अ गार्डियन। नाउ दूसरा है दैट both the governments have limited powers, cannot supersede the constitution. National government cannot supersede the constitution, state government cannot supersede the constitution, ठीक है? A written and rigid constitution. Why do I say that it is a written and rigid constitution? Can somebody explain me? Anybody who wants to answer can say, I mean, just raise their hands or something and I can unmute them. Guys, nobody? Okay. So rigid constitution इसलिए बोला जाता है क्योंकि कभी कभी कुछ लॉस पास करने के लिए we need certain type of majority. अगर वो मेजोरिटी हमें नहीं मिलती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पास नहीं होता है, चाहे फिर वो लॉ इज सपोज टू बी द बेस्ट लॉ जो शायद हमारे इंडिया में बना है, बट स्टिल वो लॉ पास नहीं होगा बिकॉज बस नहीं चाहिए किसी को किसी और पे खुन्नस है या कुछ भी या वगैरह वगैरह, वो सारी रीजंस की वजह से भी कुछ अच्छे अच्छे लॉज नहीं बन पाते हैं। रीजन बीइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है भाई कि अगर 75% मेजोरिटी चाहिए तो चाहिए, फिर वो कुछ भी हो, अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो, वट एवर इट इज, हमें 75% मेजोरिटी चाहिए। सो दैट इज वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि वो रिटन है लेकिन थोड़ा सा रिजिड भी है। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में मैंने आपको बोला हुआ है देयर इज अ यूनियन, नहीं बोला, सॉरी ये नहीं बोला था मैंने आपको, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, रेसिड्यूरी पावर्स है, लेजिस्लेटिव फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ यूनियन लिस्ट? तो यूनियन लिस्ट ना, ये लिस्ट नंबर 1 है। what does this consist of? यूनियन लिस्ट में ना नेशनल लेवल पे जो चीजें कैसे कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, वो सारी चीजें लिखी गई है। स्टेट लेवल पे स्टेट का अपना एक लिस्ट होता है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जो ना यूनियन में स्पेसिफाई की गई है ना स्टेट में, तो उसको हम तीसरे में डाल देते हैं भाई कि ये रेसिडुअल्स जो भी है ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। ओके ये सारा होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। दैट इज ऑल्सो हाउ वी डिसाइड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अभी हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा रहेगा वो यूनियन लिस्ट डिसाइड करेगा कि स्टेट लिस्ट डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट डिसाइड करेगा बिकॉज इट्स ऑन अ नेशनल लेवल, इसीलिए यूनियन करेगा। यस ईशा, यस सौम्या, करेक्ट। स्टेट लिस्ट डिसाइड करेगा कि भाई ये एरियाज में ही स्कूल होंगे, ये एरियाज में हेलो, ये एरियाज में ही स्कूल होंगे, ये एरियाज में ही स्टेट के मैटर्स डिसाइड करेगा। इन शॉर्ट यस सौम्या यू आर करेक्ट। ओके तो ये चीज हो गया।
discussing I forgot. Can somebody can somebody okay, list. Yeah, so we were discussing the list, union list, concurrent list, union list, state list, and the concurrent list. Okay, now fundamental duties. Soumya, we were also discussing fundamental duties. My last topic was fundamental duties. So as I was saying, so there are certain duties that are being given to us by the constitution, and those are to respect the national anthem, to protect the national heritage, to protect the environment, etc., etc. There are also fundamental rights given to us, that is right to equality, right to freedom of speech and expression, which will be discussed later in this chapter in detail. Okay, now what do you mean by a secular state? Can somebody explain me what do you mean by a secular state? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? Free state. Free state in sense of what? We have got freedom from 1948, 47. Sorry. फ्री स्टेट का मतलब क्या था? मतलब नो ऑफ, यस ईशा, सेक्युलर मतलब मींस दैट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. जब मैं बात करती हूँ नो ऑफिशियल रिलीजन की, मतलब कि अगर मैं स्टेट इज स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है. मतलब इंडिया में देयर इज कोई ऐसा रिलीजन नहीं है कि भाई यहाँ पे सिर्फ हिंदुइज्म ही फॉलो होगा या यहाँ पे सिर्फ ज्यूइश रिलीजन ही फॉलो होगा. नो, everybody in India, every person who is an Indian citizen can follow whatever religion they want to. चाहे अगर वो चाहे कि भाई उसको कोई religion follow ही नहीं करना है तो वो भी कर सकता है. He is not bound to follow any particular religion. We are free from that thing. मतलब हमें कोई दबाव नहीं होगा. और अगर मैं नास्तिक हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि किसी को मेरे को ये बोलने की राइट्स है कि भाई जस्ट बिकॉज यू आर नास्तिक तो तुम्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये राइट्स नहीं देंगे. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट्स देंगे बिकॉज इट इज अ सेक्युलर स्टेट. देयर इज अ कंसेप्ट. ये सबको समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो प्लीज टेल मी. Okay, also there are no restrictions on the basis of religion. We can adopt any religion. Yes guys, everybody is correct who has given answers. They are correct. Aryan, एक आंसर में जल्दी थोड़ा टाइप कर दो और जल्दी से जवाब दे दो, ठीक है? नाउ, हाँ मैम, हाँ मुझे ओके नाउ, सो ये चीज हो गया आपका which secular state. Single citizenship. There are countries who allow dual citizenship, but India is a country who does not allow dual citizenship. हमारे country में सिंगल सिटीजनशिप का रूल है. मतलब कि मैं रहती हूँ अमेरिका में लेकिन मेरा घर यहाँ पे है, इंडिया में है. मैं यहाँ पे बिजनेस चलाती हूँ अमेरिका में बैठकर. हो सकता है दिस इज अ वेरी हाइपरबली सेंटेंस, मैं बहुत ही एग्जैजरेट करके ये सेंटेंस को बोल रही हूँ, बट जस्ट इमेजिन कि अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो इंडिया बोलेगा सॉरी, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस. और आपको you have to be either a citizenship of India or you have to be a citizenship of any other country that you want to. So for example, when an Indian citizen, say for example, अगर मेरा example ले लो तो मैं यहाँ भी इंडिया में रह रही हूँ
after a few years I decide to shift to Canada. When I decide to shift to Canada, since I am from India, तो इंडियन लोग क्या करेंगे, इंडियन लोग जो होंगे वो मेरा पासपोर्ट काट देंगे और मेरे जो रिकॉर्ड्स है एज एन इंडियन सिटीजन वो निकाल देंगे, एंड वो लोग दे विल मार्क मी एज अ NRI citizen, मतलब a non-resident Indian. ठीक है, a person single citizenship मतलब we don't allow to hold, we are, yes correct, we are not allowed to hold any other citizenship, but इसके repercussions कुछ नहीं होते हैं, खाली इतना होता है कि आपको कोई भी एक ही कंट्री में आप अपना सिटीजनशिप दे सकते हो। ना जब मैं ये बात करती हूँ सिंगल सिटीजनशिप का क्या फायदा हो सकता है, मतलब क्या डुअल सिटीजनशिप का क्या फायदा हो सकता है, सिंगल सिटीजनशिप का क्या हो सकता, मतलब क्यों है ये सिंगल सिटीजनशिप। तो जिसके पास सिटीजनशिप है वही वोट कर सकता है। आपने काफी बार जब वोटिंग का टाइम आता है आपने देखा होगा कि आलिया भट्ट है, अक्षय कुमार है, these people are not allowed to vote because they are not citizens of India. They are not citizens of India. They are citizens of Canada. I think Akshay Kumar is a citizen of Canada, and Alia Bhatt is a citizen, holds a citizenship of UK. So the according to the constitution, they say Akshay Kumar is a citizenship of Canada, yes, and Alia is of UK, yes, Isha, yes, Soumya, correct, as I said. तो ये चीज है, तो सिंगल सिटीजन, तो व्हेन यू आर नॉट होल्डिंग अ सिटीजनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दीज राइट्स कि आप किसी को वोट नहीं कर सकते हैं। यू देयर आर अदर थिंग्स आल्सो व्हिच अगेन जब हम सिटीजनशिप का चैप्टर डिस्कस करेंगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि क्या एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा ये दोनों को? नहीं मिलेगा। ओनली आर्यन, दे विल ओनली गेट इंडियन सिटीजनशिप इफ दे गिव अप देयर कैनेडियन सिटीजनशिप एंड यूके सिटीजनशिप रिस्पेक्टिवली। ओनली आफ्टर दैट दे कैन गेट देयर they can get Indian citizenship. Okay, but they are apparently not ready to give their Indian citizenship. So they are not ready to give up their Canadian citizenship and UK citizenship, and that is why they do not have these rights and they are deprived of these rights. Okay, now okay, अगर question पूछा जाए that what is the official language of India, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर हम what is the official language of India? Okay, everybody, right? Hindi, okay, but Hindi in Devanagari script as the official language of India. Please remember this, Hindi, a provision was made in our constitution. I'm reading out a para, a provision, please listen to it. A provision was made in our constitution to declare Hindi in the Devanagari script as the official language of India. Article 343 ये बोलता है हमें, okay? प्लीज मार्क इट, आर्टिकल 343 लिखना है नोट्स में तो लिख लो। हिंदी करेक्ट आंसर, आर्टिकल 343 भी याद रखो। दिस माइट कम एज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन और एज आई डोंट नो व्हाटएवर क्वेश्चन, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है ना। सो ये चीज होती है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में। ओके, now when I speak about universal adult franchisee and another feature of Constitution of India, what do you mean by universal adult franchisee? Universal adult franchisee का simple meaning ये होता है कि age of voting for men is 21 and for women I think for men it is 18 and for women it is 21. So यहाँ पे क्या होता है basically, ये बहुत ही stupid लगे या जो भी लगे, but according to us, ma'am, in court, which language they used to discuss about the case, because this question was there in previous exam. You can use English or you can use जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जब हम रहते हैं तो महाराष्ट्र का जो लैंग्वेज है दैट इज मराठी, सो यू कैन यूज मराठी and you can also use English
Okay, English and Marathi can be used as an, because these are the, yes, correct, these are Aditi, yes, you're completely right. Regional language or state or English. मैं मैंने सही बोला आर्यन? Yes, you are right, correct. Sorry, I couldn't see your answers. आर्यन, यस यू आर राइट, इंग्लिश एंड मराठी आप यूज कर सकते हो। यही मैं बात अगर गुजरात की कर लूँ सौम्या, तो सौम्या इन गुजरात आई कैन यूज इंग्लिश एज वेल एज गुजराती, बिकॉज वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज गुजराती। सो इसीलिए बोला जाता है दैट यू शुड, इन विच एवर स्टेट यू स्टे, यू शुड नो देयर लोकल लैंग्वेज, विच इज मराठी इन केस ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजराती इन केस ऑफ गुजरात। ओके, ओके, मतलब स्टेट का लैंग्वेज, हाँ स्टेट का लैंग्वेज एंड वॉट एवर अदर ऑफिशियल लैंग्वेज दैट दे हैव प्रिस्क्राइब्ड फॉर, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कोर्ट में कि अगर पार्टीज को इंग्लिश भी नहीं आती है, मराठी भी नहीं आती है, दे विल डिसाइड दैट दे वांट टू डिस्कस इट इन हिंदी, तो कोर्ट ये भी अलाउ करता है, बट उसके लिए बोलना पड़ता है कोर्ट में। बट अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र के हिसाब से इट इज इंग्लिश एंड मराठी, मराठी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड इंग्लिश कैन आल्सो बी यूज्ड एज। मेरी तारीफ भी करिए मैम। आर्यन, thank you for giving the answer, and I am very happy that you gave the answer. Okay, मतलब state का language, but if English, Hindi and Marathi etc होगा, तो what will be the correct answer? Okay, what will be the correct answer? State language, dear. State language will be the correct answer. Okay, I'll move ahead. ओके, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मैंने आपको समझा दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मैं आपको समझाऊंगी एट अ लेटर स्टेज। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्लीज लिसन टू दिस। The Indian Constitution provides for an independent judiciary. The Constitution made the Supreme Court as the custodian and the protector of the Constitution. The judgments of the Supreme Court are legally binding and there is no appeal against the judgment of the Supreme Court. क्यों ये बोला जाता है that it is an independent judiciary? Reason being कि जो जुडिशरी है हमारी, से फॉर एग्जांपल मैं आज एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रही हूँ, मुझे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मुझे मंजूर नहीं है, सो आई गो टू सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में भी जो ऑर्डर आया वो मेरे अगेंस्ट आया और मुझे लगा कि नो, आई हैव टू अपील अगेन, सो आई कैन गो टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाके मुझे वापस ऐसा लगता है कि नो, आई अगेन हैव टू अपील, तो मैं वापस अपील हाई कोर्ट में कर सकती हूँ। और हाई कोर्ट का भी अगर मुझे डिसीजन मान्य नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी देयर इज वन अवेलेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं स्पेशल रिव्यू पिटिशन, वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद भी हम जा सकते हैं टू द प्रेसिडेंट, जो फाइनल होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट हम इसके लिए बोलते हैं। आई थिंक ये निर्भया केस में रिसेंटली हुआ है कि कुछ पिटिशंस जो थी वो प्रेसिडेंट तक पहुंची, बेंच वाला अपने बताया था। ओके, तो जो मैंने आपको बताया, तो सेम प्रेसिडेंट तक मैं जा सकती हूँ और प्रेसिडेंट तक जाके जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट, वो फाइनल जो बोलेगा वही वो डिसीजन होगा। ओके, निर्भया केस में ये हुआ था। वी हैव सीन दिस एंड वी हैव विटनेस्ड दिस फ्रॉम आवर ओन आईज. So you all should remember. If you all don't remember, after the class, please open Google and please Google her name and know each and every detail of this case. Okay, because it is a very informative case. Now, ये हो गया। उसके बाद इट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बेसिकली अगेन एज आई वाज सेइंग कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसके लिए भी बोला जाता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। वो से फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जो केरला का सबरीमला का जो टेम्पल है वो इस लॉकडाउन में बंद रहेगा और यहाँ पे अभी कोई फेस्टिवल्स नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल अभी जो गणपति आने वाला है हमारे यहाँ पे, अभी आता है यूजुअली, अभी आने का टाइम हो गया है गणपति जी का। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई यहाँ पे सिंस ड्यू टू दिस पैंडेमिक हम गणपति फेस्टिवल हम नहीं मनाएंगे, तो हम नहीं मना सकते हैं एंड दिस डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। हाँ मैम, ये वाला केरला का केस 11 बेंच वाला समथिंग,
हाँ डियर, सबरीमाला केस इज केस जहाँ पे डिस्कस हुआ था कि क्या सो वहाँ उस टेम्पल में ऐसा है कि थोड़े टाइम के लड़कियों को उस टेम्पल में आना अलाउड नहीं है, नो गर्ल कैन एंटर इनटू दैट टेम्पल। तो ये केस वो है, थोड़ा देख लेना, डिटेल में पढ़ लेना। ओके तो ये चीज मैंने बता दिया आपको। दूसरा, पार्टली रिजिड फंडामेंटल राइट्स, पार्टली यूनिटरी, पार्टली फेडरल रिटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय सोवेरेन? कैन समबडी एक्सप्लेन मी सोवेरेन का मतलब क्या होता है? अरे वाह ईशा, आपको तृप्ति देसाई भी पता है, इट्स आई एम इम्प्रेस्ड, गुड। ओके गाइस प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सोवेरेन। देख के नहीं गाइस, प्लीज देखना मत। मोनार्की सिस्टम शायद। No, Isha, it is not monarchy system. Anybody else? Superior power से related था। Soumya, would you like to explain? Can we unmute Soumya, please, sir? Pradeep, sir. Sure, ma'am. Soumya, Yes, ma'am. can you tell me? Can you explain superior power थोड़ा अच्छे से? मतलब इन कंट्री, मतलब जहाँ पर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है, बाकी एक्सटर्नल, मतलब कैसे बताऊं, एक्सटर्नल अफेयर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, समथिंग लाइक दैट। एक्सटर्नल मतलब कौन एक्सटर्नल? एक्सटर्नल अफेयर मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। अच्छा, okay, correct. Okay, Aditi, you are completely right. No external control, I guess. Superior. हाँ? My name is Sumaya, ma'am. So Sumaya and Aditi both. Aditi has given the answers in chat. So Sumaya Okay. and Aditi both are right. So basically क्या होता है? That हमारा स्टेट अभी इंडिपेंडेंट है। चाइना आके बोलेगा, रशिया आके बोलेगा, कोई भी कुछ भी आके बोलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया को जैसे ऑपरेट करना है वो ऐसे ही ऑपरेट करेगा। बेसिकली हम कोई भी स्टेट से कोई वी विल एक्नॉलेज नो सुपीरियर पावर। जैसे पहले के टाइम पे ब्रिटिशर्स आके हमें बोलते थे कि ये देश में ऐसी चीजें होगी, ये देश में वैसा होगा, अरे मतलब इंडिया में ऐसा होगा, इंडिया में वैसा होगा, हम ऐसा करेंगे, हमें तुम हमारे जूतियों के नीचे हो, वट एवर ऐसा सब बोला जाता था। तो यहाँ पे अभी इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड दैट इज व्हाई we as Indians we are a sovereign state. We don't accept any external powers from anybody, whomsoever it may be. ठीक है, सिंपल, सबको समझ में आ गया? ओके सो अभी लास्ट 15 मिनट्स बाकी है। प्रदीप सर, आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं क्या? तो मैं सबको क्वेश्चन आंसर्स करूंगी एंड देन आई विल एंड द सेशन। Sure, ma'am. ओके, थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Then काफी से तो सेल होने वाला नहीं है, तो आपको करना ही पड़ेगा। तू किधर है बता, मैं तेरे को क्या पूछूं, कितना सेल है? मैम मेरे घर में बहुत साउंड है, सो मैं आपको मैसेज में रिप्लाई करती हूँ। ओके स्वाति, ठीक है, बाकी सब अनम्यूट।
Aryan, you have no issues. Please, you better be unmuted. The first question was to you only. Was supposed to be to you only. Isha? Ma'am, same. I'll answer on chat. Ma'am, please. ठीक है guys, okay. So the first question is, देखो ये सारे important questions है, तो please मैं ये questions जो पूछ रही हूँ आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनना. अगर आए नहीं आए जो भी है, आप जो भी अंदर अंदर कर रहे हो वो सब मुझे नहीं पता है, लेकिन पीछे आप क्या कर रहे हो कैमरा के मुझे पता नहीं है. But these questions are important, so please उसको ध्यान में देना. Don't lose out marks on these questions, okay? So when was the constitution adopted? Everybody start writing fast. Aryan, you should be first in writing since you don't want to unmute yourself. 26 November 1949. When did it came into effect? 26 Jan 1950. Where is Isha? Where did Isha go? Okay. Anyways, ये हो गया. उसके बाद constitution is derived from a dash word. Which language it is derived from? Constitution का जो word है, constituto. Latin word. Latin word. Yes, correct, Sumaya. Then there are constitution is the dash law of land. Basic law of land. Yes, Aditi, right. Basic law of land. Sumaya, right. Okay. Constitution is necessary to be written. True or false? Yes, true. True. Yeah, it is written. India has a written constitution, ना ma'am. But मैंने क्या पूछा आपको? क्या पूछा आपने? Constitution is necessary to be in the written form. No, false. False, exactly. Now, there are three organs of the government. Which are these? A legislative, executive, judiciary. Okay. Sumaya, you are the only one who's been unmuted. Swati, Aditi, can some खाली answer देके अपने आप को unmute कर लो please. Aryan, unmute yourself. For 2 minutes, unmute yourself. हाँ बोलो. क्या है? What are the three organs of the government? Legislative, executive, judiciary. What is the function of legislative? Legislative, ma'am, law बनाते. Okay, what is the function of executive? To execute the law. Execute. अरे तू मेरे को तो बोलने मेरे को. Sumaya, wait. Okay, ma'am. हाँ. मैम एग्जीक्यूटिव मतलब पुलिस जो मतलब देखते हैं कि सब लॉ का पालन हो रहा है कि नहीं. Okay, and what is judiciary? Law interpretive. Swati? Law interpretive. Okay, interpret करते हैं law को and uphold करते हैं. Okay. Aryan? Sorry. Swati, who was the vice president of the Constituent Assembly while making the constitution? Vice president. Yeah, vice president. Sumaya? मुखर्जी. क्या मुखर्जी क्या आगे पूरा नाम है उसका? इतना ही याद आ रहा है. मुखर्जी. Yes, मुखर्जी. Aryan? Aditi, right. Professor H.C. Mukherjee. Guys, please pay attention. Who was the president of the Constituent Assembly? Aryan, jawab do. Sachinanand Sinha. No, I asked the president, not the temporary president. Aryan, temporary president was Sachinanand Sinha, but the president was Rajendra Prasad. Yes, okay. Rajendra Prasad, correct. Who was the constitutional advisor of Constituent Assembly? Yes, Aditi, you are right. Professor B.N. Rao was the constitutional advisor.
Who was the chairman of drafting बाबा committee? साहेब आंबेडकर. ओके, बाबा साहेब आंबेडकर नहीं बेटा, डॉक्टर BR अम्बेडकर. हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर. हाँ. ओके आर्यन, जवाब देना मुझे इसमें. टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने थे? 289. नो, और 10 जोड़ दो, 299. उसमें से ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो हम लोग ने फाइनली अडॉप्ट किया था, वो कितने लोगों ने साइन करा हुआ था? स्वाति, कैन यू आंसर? स्वाति, अदिति, सुमया, यस मैम. कितने लोगों ने साइन किया था ड्राफ्ट को? 280. 280. आर यू श्योर? स्वाति, आर यू देयर? मैम हाँ, वो बोल रही है वापस ऐड कर रही है ईशा. क्या? ईशा बोल रही है मैम मुझे वापस ऐड करो. प्रदीप सर कर सकते हैं शायद, क्योंकि वो होस्ट है इस मीटिंग के. वो लिंक ओपन करेगी तो ऐड हो जाएगी. यस मैम, यस मैम. हाँ. हेलो. हाँ जी सर. ईशा बोल रही है कि उसको वापस ऐड करने के लिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं. हाँ, तो अभी तक किसी का मुझे आया नहीं है. अगर कोई आता तो मैं कर दूंगा. ठीक है मैम. ठीक है सर. ओके गाइस, तब तक मुझे रिप्लाई दो. स्वाति, आर यू देयर? नो मैम, सॉरी. ओके. ओके, तो गाइस जो ये ऐड करा हुआ था, अरे सॉरी, जो टोटल मेंबर्स 299 थे, और उनमें अदिति यू वर राइट, उनमें से 284 लोगों ने ये ड्राफ्ट साइन किया, और हम लोग ने फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया इन 1949 एंड 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों पे लागू होना शुरू हो गया. ठीक है, ये हो गया. ओके, ये चीज हो गया. What do you mean by universal adult franchisee? Can somebody explain me? आर्यन, हाँ मैम. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ. लाफा पड़ेगा, एक पहली बार सुन रहा हूँ. मैंने सिखाया है अभी 10 मिनट पहले. ये क्या है मैम, पता नहीं. So, अदिति, स्वाति, सुमया. It's okay, Isha. Can you answer me? What do you mean by universal adult franchisee? You were there during that time in the lecture. Right to vote. No. Aditi, can you tell me what do you mean by universal adult franchisee? Guys, everybody please listen to me. Ma'am, right to vote ही आएगा ना? राइट टू वोट आएगा, नो राइट टू वोट नहीं आएगा. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने एक एज लिमिट सेट की हुई है. मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, प्लीज लिसन टू दिस. आर्यन, अदिति, सुमया, ईशा, स्वाति, प्लीज listen to it. The Indian Constitution originally granted universal adult franchisee to all those men and women who attained the age of 21 years. Under the 61st Amendment of the Indian Constitution, the age was reduced to 21 years and 18 years. 21 years for men, 18 years for women. They don't only get the right to vote, they also get the right to be an adult and to get married to whomever they want. After this point of time, ma'am, हाँ, you said कि 21 for like men. So 21 for men, like right to vote तभी उनको मिलेगा when they get 21 after that. Yes. Okay.
एंड 18 इज ऑल्सो अ एज जब लड़कियों को शादी करने को अलाउड किया जाता है. बिफोर 18 it is considered as child marriage. So universal adult franchisee does not only mean that I have the right to vote. Universal adult franchisee के साथ बाकी और सारे rights भी आते हैं. Okay? I hope I am clear. Ma'am, right to vote. Yeah. Okay, got it. Okay, ठीक है. So, anything else that you all want to ask me? Anybody who wants to ask me any questions? concurrent list. हाँ, concurrent list. Yes. उसके बारे में क्या? उसमें क्या आता है? Like union list is central, मतलब national के लिए. State list is for state. But for concurrent list, what does it come? Like, what all it come in it?